ایمان والی بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمان گھر میں ہمیں پیدا فرمایا اور سرکار کا امتی بنا دیا۔ بڑے بڑے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے نا، اے اللہ ہمیں موسیٰ نہ بناتا، ہمیں عیسیٰ نہ بناتا، اے اللہ اگر پیدا کرنا بھی تھا تو محمد کا امتی بنا دیتے۔ کس قدر شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جس کے بارے اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، کسی کے گھٹائے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا فانوس بن کے جس کی حفاظت یہ ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے، جسے روشن میرا خدا کرے، جس کی شان کو اللہ نے بلند فرمایا، بے شک کوئی نہیں گھٹانے والا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ شان والا محبوب عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی یہی کہتے رہے، اس کو اللہ نے اس قدر شان سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پیغمبر یہی کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے راضی کرنے کے لیے کوہ طور پر آنا پڑے گا، فرمایا مولا جیسے آپ راضی ویسے موسیٰ راضی ہو جائے گا۔ آئیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانیوں، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام میرے ماتا کے مجھے منانے کی خاطر نمرود کی آگ کے اندر آنا پڑے گا، فرمایا مولا جس طرح رب راضی ابراہیم بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ادریس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھایا جائے گا، فرمایا مولا راضی ہو جائے، ادریس بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ادھر زکریا علیہ السلام کے سر پر آنا چلایا جا رہا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ راضی کرنے کے لیے اتنے حسن والا وہ پیغمبر یوسف بھی اٹ کیا جا رہا ہے، اٹیوں کے برابر، جب تاکہ اس کو بھی بیچا گیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ بس اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ایمان والی بہنوں یاد رکھیے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ اکبر، دل میں یہی خیال تھا نمرود کی آگ کے اندر بھی جانا پڑا، بس اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا ہر پیغمبر آتے رہے، بس یہی کہتے رہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ادھر امام حسین نے 72 تنوں کو شہید کروا دیا، بس اللہ راضی ہو جائے۔ ایمان والی بہنوں نمازی نماز پڑھ کہتا ہے، نماز پڑھ کے کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کر کے کہتا ہے بس اللہ راضی ہو جائے، غازی جہاد کر کے کہتا ہے بس اللہ راضی ہو جائے، روزہ والا روزہ رکھ کے کہتا ہے بس اللہ راضی ہو جائے، ذرہ ذرہ کائنات کا کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن وہ رب فرماتا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب راضی ہو جائے، محبوب جیسے تو راضی ہو جائے رب رحمان بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں، سرکار نے فرمایا مولا میں محمد تب راضی ہو جاؤں گا جب تک میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، جب میرے ساری امت کی مغفرت کر دی جائے گی محمد راضی ہو جائے گا۔ تو آئیے میرے اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، امت کا غم نہ کر، جو تیرا امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے تو میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ محبوب عرض کرتے ہیں میرے مولا میرے امتی کو کیسے پتا چلے گا میں نے 1 سال بعد دنیا چھوڑ جانا ہے، اللہ مزید بھی رحم فرما دو۔ اللہ نے فرمایا محبوب غم نہیں کرنا، اگر تیرا امتی مرنے سے 1 ماہ پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے تو میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ محبوب فرماتے ہیں اے اللہ ابھی میرے امتی کو کیسے پتا چلے
चलेगा, मैंने 1 माह बाद दुनिया छोड़ जाना है, अल्लाह मजीद भी उम्मत के मामले में रहम फरमा दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब गम नहीं करना, अगर तेरा उम्मती मरने से 1 हफ्ता पहले अगर तौबा करे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए, मैं उससे भी राजी हो जाऊंगा, उसको भी माफ फरमाऊंगा। फरमाया मेरे मौला मेरे उम्मती को कैसे पता चलेगा, 1 हफ्ते के बाद दुनिया छोड़ जाना है, अल्लाह मजीद भी रहम फरमा दो। फरमाया महबूब गम न कर, अगर तेरा उम्मती मरने से 1 दिन पहले अगर तौबा करेगा, मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। जो मरने से 1 दिन पहले अगर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो के रो के तौबा कर ले, तो अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। महबूब ने फरमाया मेरे मौला मेरी उम्मती को कैसे पता होगा, मैंने 1 दिन के बाद दुनिया छोड़ जाना है, अल्लाह मजीद भी उम्मत के मामले में रहम फरमा दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब गम नहीं करना, अगर वो जिंदगी गुजारे गुनाहों के अंदर, दुनिया से जाने का वक्त है, बस 1 लम्हा पहले अगर वो तौबा करे तो मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। वो कैसी वफा वाला अल्लाह, जिंदगी गुजारी गुनाहों में, बस दुनिया से जाने से कबल अगर 1 लम्हा भी पहले अपने गुनाहों पर जो रो के शर्मिंदा हो जाए तौबा करे, अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। उसके बख्शने के तरीके सुबहान अल्लाह कुर्बान हो जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले तौबा करे तो मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह कुछ गुनाहगार ऐसे भी होंगे, अल्लाह मजीद और भी रहम फरमा दीजिए। फरमाया फिर गम नहीं करना, अगर तेरा उम्मती जिंदगी गुजारे गुनाहों में, बस दुनिया से जाने का वक्त है, रूह निकल रही है, अगर आखिरी सांस है तब भी अगर वो शर्मिंदा हो जाए तौबा कर ले तो मैं माफ फरमा दूंगा। महबूब फरमाते हैं अल्लाह कुछ बदबख्त ऐसे भी होंगे तब भी शर्मिंदा नहीं होंगे, तो अल्लाह मजीद भी रहम फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह फरमाते हैं महबूब गम ना कर, फिर एक ऐसा दिन बनाऊंगा 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा, बस उस दिन अगर जिसकी शफात तू करेगा उसको जन्नत में अता फरमा दूंगा, जिसकी शफात तू करेगा उसको जन्नत में दे दूंगा। तो मेरे महबूब ने क्या फरमाया, तवज्जो से सुनिए। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसकी शफात मैं मोहम्मद खुद करूंगा जो मेरी जात पर ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ के आएगा। जो पढ़ती रहती है जरा वो बोल दे सुभान अल्लाह। जो मेरी जात पर फरमाया दरूद और सलाम पढ़ेगा उसकी शफात मैं मोहम्मद खुद फरमाऊंगा। अरे ये कायनात का जर्रा जर्रा भी आका पर दरूद पढ़ता है, पत्ता पत्ता भी दरूद पढ़ता है, टहनी टहनी भी दरूद पढ़ती है, एक हम ही नहीं उन पर तो सारा जमाना ही दरूद पढ़ता है, सारा जमाना ही दरूद पढ़ता है। हाँ अगर चाहती हैं कामयाब होना चाहती हैं तो अपनी जिंदगी में आदत बना लें, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा मेरे आका की जात पर दरूद और सलाम पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म कुरान में अता फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। हज का हुक्म दिया लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैं भी हज करता हूँ। रोजे का हुक्म दिया लेकिन जब मेरी बहनों दरूद की बारी आती है तब मेरा रब फरमाता है कि ईमान वालों मैं खुद भी दरूद और सलाम पढ़ता हूँ, मैं खुद भी दरूद और सलाम पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद और सलाम पढ़ते हैं। ईमान वालों आप भी मेरे महबूब की जात पर दरूद और सलाम भेजा करो और ऐसी मोहब्बत से भेजा करो और ये सोच कर पढ़ा करें कि हमारे आका हमारा दरूद सुन रहे हैं। फिर देखिएगा कैसे दिल में सुकून पैदा होता है। और ये दरूद ऐसा वजीफा है कि जो बगैर बिन पढ़े ही पढ़ जाता है, दरूद वजीफा ही ऐसा है। तो अगर चाहती हैं आखिरत में दुनिया में कामयाब होना चाहती हैं तो आज से ये आदत अपना लें। अगर कोई सा भी आप घर का काम कर रही हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसा वजीफा है, नमाज का वक़्त भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, रोजे का वक़्त, हज का वक़्त, लेकिन दरूद का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। जब भी पढ़ोगे सोकर पढ़ो, बैठकर पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, शाम को पढ़ो, सुबह को पढ़ो, जब भी पढ़ोगे ये कबूल ही कबूल किया जाएगा, ये कबूल किया जाएगा। और हाँ अपनी जब भी दुआ करती हैं उससे कबल लाजमी आदत बनाएं, दरूद और सलाम जरूर पढ़ा करें। दरूद इब्राहिमी पढ़ के जो दुआ मांगी जाए फिर अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हर दुआ के अव्वल आखिर में दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ा करें, हर वजीफे के अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े।
पढ़े तो इंशाअल्लाह फिर मजीद अल्लाह बरकतें नसीब फरमाएगा। हाँ, ये एक ऐसा वजीफा है जो बगैर पढ़े ही जो पढ़ जाता है, दरूद वजीफा ऐसा है जो अल्लामा इकबाल को बच्चा बच्चा भी जानता है। तो आइए जरा सुनिए अल्लामा कैसे बना। अल्लामा कैसे बना? वो कहते हैं मैंने कभी मुदरसे में तो मैं नहीं गया, लेकिन अल्लामा कैसे बन गया बहुत गौर करने की बात है। फरमाते हैं कि मैं एक दिन एयरपोर्ट पे अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा एक बाबा बुजुर्ग मुझे मिले और बुजुर्ग के हाथ में तस्बीह थी और वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। तो आपने फरमाया, अल्लामा इकबाल कहते हैं बाबा जी मुझे भी कोई वजीफा बता दीजिए, मैं क्या पढ़ा करूँ? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्फा करना चाहते हो तो बस अपनी आदत बना ले, हर वक्त नबी की जात पर दरूद भेजा करो, अपने आका की जात पर हमेशा दरूद भेजा करो। अब वो कहते हैं कि मैं घर में आया, मैंने घर में आते ही तस्बीह उठाई, दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे यहाँ तक कि 1,00,000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, किस्मत वालों को ही ये अमल नसीब होते हैं। 1,00,000 मरतबा उन्होंने दरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़ लिया। जब रात को सोते हैं तो किस्मत जाग उठती है। सुभान अल्लाह, क्या देखा? ख्वाब के अंदर नजर आता है कि एक ऐसा नाला है जिसके अंदर गंदा सा काला सा पानी है। फिर कुछ थोड़ा सा आगे सफर किया तो फिर एक ऐसा नाला नजर आया कि वहां पर बिल्कुल साफ और शफाफ पानी था। जब वापस लौट कर आते हैं तो वो काला पानी भी सफेद बन चुका था। एक अल्लाह के वली के पास गए, अल्लाह के वली इस ख्वाब की ताबीर क्या है? उन्होंने बताया, बेटा जो तूने अपनी जिंदगी में हत्ता कि कोई ऐसा अमल लेके आए हो अपनी जिंदगी में, कौन सा अमल ऐसा किया है जिसकी बदौलत अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल डाला? जिसको समझ आ रही जरा वो बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाया तूने अमल कौन सा किया है बताओ? ऐसा तूने अमल किया है कि तेरे जो गुनाह थे वो सब नेकियों में बदल चुके हैं। जो तुझे काला पानी नजर आया था वो तेरे गंदे आमाल थे, तेरे गुनाह की वजह से था। लेकिन जब तू आगे गया वो काला पानी क्रॉस करके थोड़ा सा आगे तू गया, जो सफेद पानी नजर आया वो तेरे गुनाह नेकियों में बदल चुके थे, तेरे गुनाह नेकियों में बदल चुके थे। वो तेरे जब वापस लौट के आता है वो जो नाला आपको नजर आता है काला पानी था वो सफेद हो चुका, वो तेरे गुनाह जो थे वो नेकियों में बदल चुके। बता अमल कौन सा करके आए हो? फरमाया मैं तो कुछ नहीं करता, बस हाँ मेरी एक आदत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ा करता हूँ, दरूद इब्राहिमी पढ़ा करता हूँ। तो ईमान वाली बहनों, फिर भी आपकी जब अता के फरमाते हैं मैं घर में आया फिर भी मेरी आदत बनी रही, मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा, यहाँ तक के 1 करोड़ मरतबा मेरा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, 1 करोड़ मरतबा जब दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तो फिर किस्मत क्या ही जाग उठी। किस्मत कैसे जाग उठी कि रात को सोए तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए, मेरे सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर जिनको दीदार हुआ अल्लाह वाले ने लिखा इस सूरत नू में जान आखा, इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच्चे आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तू शाना है सब बढ़िया ने। जब अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ तो दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी, कैफियत तब्दील हो चुकी थी। अब दिन हुआ तो मोहब्बत में आकर उसने पेंसिल उठाई और एक हत्ता की वर्क उठाया सरकार की, जिस तरह उसने दीदार किया शान में कुछ जुमले नात लिखना शुरू की। तो जैसे ही वो जुमले लिखे एक बड़े बड़े मुफ्तियों के पास उसने भेज दिया वो जो पर्चा था जिस पर सरकार का वो जैसे आपने हुस्न देखा दीदार किया, फिर वो ही उस शान के अंदर तारीफ लिखना शुरू की। तो वो फिर मुफ्तियों के पास पर्चे को भेज दिया कि कहीं इसमें मैंने गलती तो नहीं की, देखो इसमें सही लिखा है। तो मुफ्तियों ने जब वो जुमले पढ़े तो वो कहते हैं अरे इकबाल तू अता के ये जुमले कहाँ से लेके आया? हमने बड़े बड़े मुदरसों में पढ़ा, मुफ्ती बने, लेकिन ये लफ्ज ऐसे मोतियों की तरह लिखे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते ये कैसे सोच लिए। तो कहा मैं जब आका की जात पर दरूद इब्राहिमी पढ़ा करता था, जब सरकार का दीदार नसीब हो गया, जब लिखने के लिए बैठा तो वो लफ्ज मोती बन बन के मेरे जहन में उतरते गए और लिखता रहा और इकबाल ये जुमलों को लिखता रहा। जब इतनी सी बात सुनी
تو بڑے بڑے مفتیوں نے کہا آج کے بعد تو صرف اقبال نہیں علامہ اقبال بن گیا ہے۔ پتا چلا جو بغیر پڑھے ہی پڑھ جاتا ہے اسے علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا، میری ایمان والی بہنوں، یہ کس کی بدولت؟ آج بھی دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے، عزت اللہ نے پھر عطا فرمائی کس کی بدولت؟ جو سرکار پر بے حد مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی عادت بنا لے۔ چاہتی ہیں کہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو بس عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر چاہتی ہیں ہم دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے تو اس عمل کو زندگی بھر کے لیے معمول بنا لیں، بس ہمیشہ میرے آقا کی ذات پر درود اور سلام پڑھیں، کیونکہ ہمیشہ ورد صلی اللہ کیجئے، بس مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے، محشر میں یا مصطفیٰ ہم کو اپنا دامن عطا کیجئے۔